آپ کا میزبان شاہد اختر روان ایک نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جس علاقے میں، وہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، بیکورڈ سائڈ پہ۔ ناظرین، یہ علاقہ ہے تحصیل خانپور کے اندر۔ خوبصورتی کے لحاظ سے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہ جب کا علاقہ ہے۔ یہ یہاں سے ایک راستہ جب کو جاتا ہے اور دوسرا یہ راستہ جو جاتا ہے تراڑ کو جاتا ہے۔ یہاں پہ اسکول تو بنے ہیں لیکن وہاں پہ اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں جو عوام کو میسر ہو سکیں۔ یہاں پہ بی اے یو اسپتال بھی، اس کے حوالے سے بھی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے ساتھ مسائل ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، میں جب کے بازار میں پہنچ چکا ہوں اور ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں۔ کون سی ایسی سہولیات ہیں جن میں فقدان ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر زمان۔ حیدر زمان صاحب، آپ کی ایج کیا ہے؟ عمر کتنی ہے؟ جی، عمر تقریباً 65 سال ہوتی۔ اچھا، 65 ایئر کے ہیں۔ تو کیا کام کرتے رہے ہیں آپ؟ ہم ذمہ داری کرتے رہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جب میں خاص طور پہ زیادہ تر لوگ ذمہ داری کرتے ہیں۔ یہاں زیادہ ذمہ داری کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب کو وہ پروموشن نہیں مل سکی، وہ پروموٹ نہیں ہو سکا اس میں؟ بس تھوڑا سب تو مین گاڑی کی تعلیم کی کمی ہے، جہلیت ہے، تو دوسرا جناب کے نا سو روڈ کی کمی ہے۔ آپ کے اب تو روڈ بھی ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایجوکیشن کی بات آپ کہہ رہے ہیں، تعلیم کی کمی جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کے پاس تو اسکول بھی بن چکے ہوں گے؟ ہاں، اسکول بن چکے ہیں، تو روڈ بھی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ہم نے دیکھا ہے، ہمارے کو کوئی آسانی نہیں۔ سب تو مین مشکل ہے کہ بچوں کا کوئی رستہ نہیں ہے اسکول کے جانے کے لیے۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہی وجہ یہ ہے کہ جو رستے ہیں لوگوں کی ملکیت ہے، اچھا، کہ وہ پہلے تو لوگ اس رستوں میں کہ نا سو بچے چلتے بغیر، ابھی ان سینتوب ہو گیا تھوڑا، لوگ کہ نا سو بولتے ہیں کہ ابھی جائیں قیمتی ہو گئی، تو وہ انہوں نے بند کر دی۔ اچھا، اس کے علاوہ کون سی ایسی سہولیات ہے جو ابھی تک آپ کی دہلیز پہ نہیں پہنچی؟ اور کہ نا سہولیات کے نا سو دوسرا اور بھی تکلیف یہاں پہ ہیلتھ پہ، تو ہیلتھ کی سہولیات کیا آپ کے پاس میسر ہیں؟ وہ تو منجسر ہے، لیکن یہ بھی ہے اس میں عملہ بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ملازم بھی کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، اور اس میں دوائیاں بالکل نہیں ہیں، اس کی دوائی کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ بہت اچھی تھی کہ وہ کہ نا سو کیا نام ہے، ایک دعا اس کا ایک کمپنی تھی، وہ ان کے ملازمن تھے، وہ جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے، دن کو اور کرتے تھے، رات کو اور کرتے تھے۔ ابھی وہ لوگ نہیں ہیں، تو ان کو اس وقت کچھ نکالا گیا ہے، تو ابھی تو بہرحال ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے یہاں پہ سٹاف پورا تھا، اب سٹاف کم ہو چکا ہے؟ کم ہو گیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے علاقے میں جو سیاسی خاص طور پہ اثر و رسوخ رکھنے والے نمائندے ہیں، ان کے بارے میں؟ وہ بھی کہ نا سو وہ بھی یہی لوگ ہیں کہ جالیت بہت ہے ان کے جی، تو اس طرح کوئی محنت وغیرہ نہیں کرتے ہیں، نہ آگے سیاسیوں تک کوئی گل پہنچاتے ہیں، نہ آگے اسمبلی میں کوئی گل کرتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں۔ اس طرح بہت ہی جناب کے نا اس میں یہ بات ہے۔ تحریک انصاف جب سے آئی ہے تو کوئی تبدیلی آپ کے علاقے میں بھی آئی ہے؟ تبدیلی یہ تو سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا روڈ بنا ہے، یہ تحریک انصاف کے حساب سے بنا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہاں پہ اس علاقے کی عوام کے لیے یہ ہے کہ یہ سڑک بن چکی ہے، جو اس سے پہلے یہاں پہ نہیں تھی، بلکہ خستہ حال تھی، یہاں پہ راستے نہیں تھے، تو یہاں پہ عوام کو آنے کے لیے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ سب سے بڑی کامیابی تو ان کے لیے یہ ہے۔ ابھی کچھ نہیں اس نے کام کیا خاص۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مزید آگے بھی بڑھیں گے اور خاص طور پہ جو اسکول ہیں اس میں بھی آپ کو لے کے جائیں گے، ان کی حالت بھی آپ کو بتائیں گے، اور بی ایچ یو کے بارے میں یہ بزرگ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جانا لازمی ہے، کیونکہ ہمارا کام بنتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ سے آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو آج تک آپ کے علم میں نہیں ہوں، آپ کو بتانے کے لیے پرائمری اسکول اور ہائی سیکنڈری اسکول کی طرف، لیکن یہاں پہ راستہ بند ہے۔ ہم نے جب جانا یہاں کے عوام سے، یہاں کے مقامی لوگوں سے، راستہ بند ہے، تو اسکول بنا دیے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے، فنڈ لگا دیے ہیں کروڑوں روپے کے، لیکن یہاں پہ راستے کا تنازع نہیں حل ہوا۔ آخر کیوں نہیں حل ہوا؟ یہ جب سوال سارے میں نے کیے، وہ کیمرے کے سامنے تو نہیں آنا چاہ رہے، لیکن انہوں نے کہا تھوڑی سی سیاسی مداخلت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو اسکول بنے ہیں اس ٹائم انہوں نے راستہ نہیں پرچیز کیا۔ راستہ نہ پرچیز کرنے کی وجہ ابھی جو ہے یہ تنازع بنا ہوا ہے، یہ یہاں کی ملکیت ہے، راستہ جو آ رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی پیمنٹ کی جائے تاکہ ہم راستہ دیں اسکول کے بچوں کے جانے کے لیے۔ تو اس پہ بھی آپ کی توجہ ڈلوائیں گے، اور یہ میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ
यहाँ पे जिस तरह के कांटे रखे हुए हैं, यहाँ पे कांटे रख के तो स्कूल का रास्ता जो है बंद किया गया है, मुकम्मल स्कूल के रास्ते बंद है। तो ये किस तरह अंदर जाएंगे, ये हम आपको बताते हैं कि किस तरह यहाँ से अंदर जाना है। कि स्कूल के बच्चे आते हैं डेली और डेली इन कांटों को उठा के तो साइड पे करते हैं, ये साइड पे करके तो आगे जाते हैं। तो हम आज साथ साथ चल रहे हैं और आपको ये रास्ता बता रहे हैं कि कितना मुश्किल रास्ता है। तो यहाँ पे गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है, बाइक पे आना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मुश्किलात के साथ साथ यहाँ पे स्कूल को आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और टीचर भी आ रहे हैं। तो इस पे ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो यहाँ पे मरकूज़ करवाना हमारा इसलिए ज़रूरी था कि आप भी देखें। और ये चीज़ जो है अभी तक यहाँ पे महकमा एजुकेशन के नोटिस में होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से उनके नोटिस में होने के बावजूद इस पे कोई हल नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे सिलेक्टेड MPAs हैं, उनका काम था कि अपने हल्के में ख़ास तौर पर एजुकेशन पे इस तरह का जो मसाइल हैं उनको हल करवाते, और इनको हल करवाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट और MPA मिल के इस रास्ते को परचेज़ करते, यहाँ पे जो मलकियत ज़मीन है उसका हल निकालते। और ख़ास तौर जो जिसने यहाँ पे पहले स्कूल बने हैं, बग़ैर रास्ते के स्कूल बनाए, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि ये रास्ते के बग़ैर अगर स्कूल बना दिए तो ये क्यों बनाए। हमारे साथ रहिए, मज़ीद भी आपको डिटेल आगे चल के बताते हैं हम। ये अच्छी बात है, यहाँ पे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो असल जो ये रास्ता है जिसमें अभी बंद है, उनके असल मालिक हमारे पास आ चुके हैं। उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा जी ये रास्ता है। तो मजीद तफसीलात हम चाहते हैं कि कैमरे के सामने उनसे जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक। यहाँ पे जब हम जो जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ से जो रास्ता आ रहा है तो ये आपकी ज़मीन में है? जी ये हमारी ज़मीन में, जबकि रास्ता जो असल है ना वो नीचे है, वो उस बंदे ने कब्जा किया हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट का रास्ता भी तो लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल जी होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट का है, जो कागजात पे सब मौजूद है। अच्छा, वो जबकि वो उस बंदे ने कब्जा किया हुआ है, वो नहीं दे रहा है इनको। कौन है बंदा जिसने कब्जा किया हुआ है? और यहाँ पे इतनी कमजोर हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, तो दावे देखे तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अपनी जो असल है एजुकेशन डिपार्टमेंट को जहाँ पे स्कूल को आने के लिए रास्ते हैं वो बंद हैं। तो कौन सा ऐसा बंदा है कि जिससे यहाँ की गवर्नमेंट भी रास्ता नहीं ले सकती? ये जो साथ जिसकी ज़मीन है ये उसने कब्जा किया हुआ है ना। नाम बता दें। मुस्तफ़ा हसन शाह है। क्या काम करते हैं? वो पुलिस रिटायर्ड है। अच्छा, पुलिस में रिटायर हुए हैं, मुस्तफ़ा हुसैन शाह नाम है उनका, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की जगह पे कब्जा किया है और रास्ता बंद कर दिया। जी जी, ये रास्ता भी उन्होंने बंद किया हुआ है। तो कोई कानूनी प्रोसेस वगैरह किया? कोई भी नहीं हुआ है। वो रहते कहाँ हैं? यहाँ पे रहते हैं क्या? उनके बच्चे यहाँ, उनकी फैमिली वगैरह स्कूल में नहीं पढ़ती? सब इधर रहते हैं, वो उनकी फैमिली बच्चे उनके इधर स्कूल में पढ़ कर गए हैं। तो क्या वजह है, क्यों बंद किया? और कोई वजह तो होगी, इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। वजह सर हमें नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? तो अच्छा, आपने क्यों बंद किया है? आपने हमने तो नहीं बंद किया हुआ अच्छा, है। आपने रास्ता दिया हुआ है? हमने रास्ता जबकि सरकारी ऑलरेडी है ना, हम किस वजह से अपनी ज़मीन से रास्ता दें। अच्छा, आपकी ज़मीन में जो रास्ता आ रहा है तो इस्तेमाल हो रहा है, उसको अभी तक आपने नहीं पता? हम ये कुर्बानी दे सकते हैं कि हम फिर भी अगर हमारी ज़मीन से रास्ते ज़रूरत पड़े तो हम दे सकते हैं, एक साइड से हम दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का रास्ता आपको मिले तब देंगे या वैसे? वैसे भी हम अगर पहले तो डिस्ट्रिक्ट से इनको लेना चाहिए। अगर रास्ता कम है, ज़मीन कम आती है, डिस्ट्रिक्ट का जो रास्ता है ना वो अगर 6 फुट बनता है ना, तो 6 फुट से अगर नहीं निज़ाम इनका चल रहा है तो हम 2 फुट 3 फुट हम दे रहे हैं। एक और भी नौजवान यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनसे भी जानते हैं यहाँ पे क्या असल वजूहात हैं, क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ये ज़मीन मेरी ही है, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, आप दोनों भाई हैं आपस में, तो ये ज़मीन आपकी है, तो क्यों बंद हुआ है? सर ये तो पता नहीं, किसी बंदे के दिल की तो कोई नहीं बंद। ली हो, कोई इंतजामिया आई हो? आप इंतज़ामिया के पास कोई एप्लीकेशन गई है मालूमात के मुताबिक, लेकिन अभी उस तक गद्दार और पटवारी एक दफ़ा मौके पे आए थे, आके देख के चले गए हैं ये रास्ता बंद है। इस बंदे ने ज़मीन में ये ज़मीन बना के तो हमारी ज़मीन की तरफ रास्ता करने की कोशिश की है कि एक साइड से जो है ना इस ज़मीन में चला जाए, ये ताकि ये जो हमारी ज़मीन नीचे बच रही है वो भी कब्जा किया जाए इस पर। तो इस तरह के कोई मामला आते हैं। तो ये जो अभी है पटातर पट्टी की हुई है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे सारी उलझन बनाई हुई है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा उनको अगर बारिश हो जाए। ये देखे ना, ये रास्ता यहाँ से घूम के ना ये नीचे से गुजर के तो हमारी ज़मीन में ही, पहले भी हमारी ज़मीन से ही जा रहा था, हमारी ज़मीन बल्कि नीचे भी बची हुई है। तो अभी तो बिल्कुल ये बंद करके तो ऊपर की तरफ ये रास्ते को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मज़ीद जो ज़मीन बचे और वो नीचे उस पर कब्जा किया जाए। अच्छा, आप
उसके पास अगर आपको पेमेंट की जाए तो आप रास्ता देने के लिए तैयार हैं? नहीं, अगर रास्ता ज़रूरत हो, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी लट्ठे पे लगा हुआ है, इस पे यहाँ तक पहुँचा हुआ है, आपको वो हम बता भी सकते हैं लट्ठे की कापी। नाजरीन, हम शामिल करेंगे क्योंकि कानूनी प्रोसेस होता है, उसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी लेके आ जाएं डॉक्यूमेंट, ताकि हमारे आने का यहाँ पे मसला जो है, हम जो जिस चीज़ की निशानदेही करते हैं, यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो उनके लिए मसाइल ना हो। प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, जो आपके सामने भी है, पीछे आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जब। तो यहाँ पे हाई स्कूल में आ गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से आए, गाड़ी हमने रोड पे ही पार की, तो यहाँ पे आने का रास्ता नहीं था। सबसे बड़ी बात, रास्ते का बड़ा मसला है, तनाज़ा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसका काम है ये इस तनाज़े को जल्द अज जल्द हल करे, और जो ये बच्चे हैं यहाँ पे जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उनका हल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाएँ, आप आवाम के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप स्कूल तक आते हैं तो कितने मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? जी, पहले हमारे जो टीचर या इकराम जो स्टूडेंट होते थे, वो अपनी बाइक्स वगैरह या अपने गाड़ियाँ इधर स्कूल तक ले आते थे, बड़ी आसानी से आ जाते थे। वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब मुश्किलात हैं, काफ़ी कम से कम 10-15 मिनट जो है वॉक करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर जो हमारे जो माजूर बच्चे हैं, जो हमारे पास स्टाफ मेम्बरान जो है मजदूर हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ज़ाहिर है जो टीचर आते हैं उनको भी काफ़ी उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा वो लेट भी हो जाते हैं। तो ये एक बुनियादी मसला है, जो हमारे स्कूल का भी मसला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, नाजरीन मैं आपको बताऊं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ KPK के अंदर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावे थे कि यहाँ पे हम तब्दीली ले आए। पिछले 5 साल भी तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे सूबाई हुकूमत की है, और तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर यहाँ के हरीपुर के अकबर यूब भी यहाँ पे मिनिस्टर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा जो वफाकी वजीर बिजली और तवानाई के हैं वो भी उमर यूब खान है, लेकिन जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ, बदकिस्मती की बात यह है नाजरीन, बदकिस्मती की बात कि आज दिन तक यहाँ पे मीटर तक नहीं लगा। 7 अकब में हमारे यहाँ पे आबादी है, वहाँ पे बिजली बिल्कुल मुयस्सर है, लेकिन यहाँ पे स्कूल के अंदर, हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर बिजली नहीं है। क्या सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा है इस बारे में? जी बिल्कुल, बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो गर्मियों में किस तरह गुजारा होता है? ये बज़ाहिर मुश्किल है, तकलीफ़ होती है, बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, तो बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ज़ाहिर हमारा जो बाकी भी प्रॉब्लम है, हमने तो ज़ाहिर बिजली की बुनियादी ज़रूरत है, इसको बिजली होनी चाहिए। और इस मसले को हमने डिपार्टमेंट में और बाकी हमने काफ़ी हाईलाइट किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जी अच्छा, डिपार्टमेंट में आपने हल किया, लेकिन हल न निकलने की वजह थोड़ी सी बताएं। हल न निकलने की वजह क्या है कि यहाँ पे क्यों नहीं हल हो रहा? क्योंकि साथ हमने देखे मीटर लगे हुए हैं, क्या इसमें वापडा की जो है ज़ाती इंटरफेरेंस तो नहीं है यहाँ पे ना लगाने की? इसमें जो हमने वापडा से रब्ता किया है, वो कहते हैं कि जी इसमें आपका 2 HT पोल लगेंगे और एक 25 kV का ट्रांसफार्मर लगेगा। क्योंकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़ाहिर है उस पर तकरीबन 5-6 लाख रुपए का उनका एस्टिमेट उन्होंने 2-3 दफ़ा बना के दिया है, लेकिन अब इस एस्टिमेट को कोई पैसा उनको देने के लिए तैयार नहीं है। इतना पैसा तो ना हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है और ना शायद स्कूल तो कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये रह गया। तो मेरे ख्याल में ये सिंपल कनेक्शन हो जाए, 1 मीटर या 2 मीटर लगा दें, तो लाइन करीब से गुजर रही है, तो ये काम हो सकता है, हमारा काम हल हो सकता है। मेरा हमने देखा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल साहब नहीं है, तो उनकी पोस्ट जो है वो आप संभाल रहे हैं, तो इसमें क्या यहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए नहीं था? यहाँ पे मिनिस्टर साहब को नहीं चाहिए था कि यहाँ पे प्रिंसिपल अगर यहाँ से गए हैं, उनकी ट्रांसफ़र हुई है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल को आ जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल होना चाहिए, बल्कि हमारे तकरीबन स्टाफ की 10 पोस्टें खाली हैं यहाँ पर। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, 4 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, और बाकी जो टीचर हैं तकरीबन 10 पोस्टें टोटल खाली हैं। तो बिल्कुल प्रिंसिपल भी होना चाहिए। ज़ाहिर है कम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, तो स्कूल ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज से चलता है। तो बाकी टीचर भी, जब पोस्टें हमारी फिल होंगी तो हमारी ज़ाहिर एजुकेशन का मेयार बेहतर होगा, ज़्यादा काम अच्छा बेहतर होगा। जी, माजूर हैं तो इनसे जानते हैं कि कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका मशकूर हूँ। तो पहले तो इस तरह होता था कि जब ये रास्ता खुला था तो हम बाइज़्ज़त तरीके से, आसानी से हम स्कूल के अंदर, हमारा बाइक आ जाता था, हम यहाँ पर अपना काम ज़िम्मेदारी से बखूबी सर अंजाम देते थे। तो अब चूँकि रास्ता बंद होने की वजह से और पैदल आने के लिए जो हम मजदूर बच्चे हैं या जो डिसेबल स्टाफ है हमारा, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये है कि अगर ये रास्ता हमारा जो अभी बंद है, ये खुल जाए तो इससे काफ़ी लोगों को, एक तो स्कूल, 2 स्कूल हैं इधर, एक प्राइमरी स्कूल है और एक ये हायर सेकेंडरी स्कूल है,
1000 के लगभग यहाँ स्टूडेंट्स हैं और 40-50 के इक्वल जो है वो स्टाफ मेंबर हैं। तो अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो देखें कितने, एक तो स्कूल्स जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, दूसरा 40-50 मेरे ख्याल में यहाँ पर आबादी बनती है, तो ये सारे मुस्तफ़ीद होंगे। और अगर ये रास्ता खुल जाए तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि आप अगर ये काम कर देंगे तो हम इस सारे जो स्कूल हैं या जो एरियाज़ हैं इनकी दुआएं आप सबको लगेंगी और इंतज़ामिया का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द ये हल करवाएं। बहुत शुक्रिया। बगैर बिजली के आप यहाँ पे किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, ये थोड़ी सी नाजरीन को डिटेल बताएं, ताकि बगैर बिजली के तो एक घर चलाना मुश्किल है इस टाइम। तो झोपड़ियों वाले भी इसलिए झोपड़ियों को छोड़ के किराए के मकानों में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बगैर बिजली के हरीपुर में ख़ास तौर पे रहना ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो आप एक स्कूल के अंदर हैं, वो भी हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। ख़ास तौर पर टीचर तो चले सर्वाइव कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर कितनी मुश्किलात होती हैं। तो गर्मियों में जो है वो से बच्चे जो है वो बीमार होते हैं, गर्मी की वजह से काफ़ी जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस वक्त हमें जो हमारे ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम काम करते हैं उसमें हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा और भी मेरी कोशिश होगी टीचर साहिबान को और बच्चों को ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल करूं, ताकि उनकी ज़ुबानी भी आपको बता सकूं कि कितने मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। अपने प्रोग्राम में ज़ियाउद्दीन अहमद साहब को भी शामिल करते हैं, जो एसएस टीचर हैं यहाँ पे जबकि हाई सेकेंडरी स्कूल में। उनसे भी जानते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है इस स्कूल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ज़ियाउद्दीन अहमद। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जब ये 2017 में कायम हुआ था और इसके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 बैचेज़ यहाँ से जा चुके हैं। नामुसाइद हालात के बावजूद हमारे स्कूल के असातिज़ा ने, तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसका रिज़ल्ट ये निकला है कि पहला बैच और हमारा दूसरा बैच दोनों बैचों में 100% रिज़ल्ट था। उसके अलावा नाज़रीन ये भी रहा है कि दूसरे बैच में हमारे पास तालबात भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम तालबात ने अच्छे नंबर हासिल किए। नामुसाइद हालात का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं तो हमारी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं है। हमारे पास सिर्फ हायर सेकेंडरी के 4 कमरे हैं, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 8 कमरे, साथ उसके लैब्स भी होते हैं। तो मैं मुतल्लिका हकाम से आपके पास यहाँ पे लैब नहीं है। लैब ना होने की वजह से हमारे बायोलॉजी की क्लास हम नहीं ले सकते हैं और वो बच्चे हमारे पास दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा तो बच्चे आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये भी मुतालबा रखता हूँ और तवक्को करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो स्कूल की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो मरकज़ी स्कूल है, आसपास के काफ़ी इलाकों से बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे टैलेंट भी बहुत है। मैं मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे हमारे बच्चों ने माशाल्लाह अभी हमारे पहले बैच के 4-5 बच्चे मुख्तलिफ फोर्सेज में भर्ती हो चुके हैं। कोई आर्मी में है, कुछ नेवी में है, कुछ FC में है। तो वो इस बात का मुजाहरा करता है कि हमारे बच्चे फिजिकली बड़े फिट होते हैं और वो मुख्तलिफ मुकाबलों में जाकर हिस्सा भी लेते हैं। बैकवर्ड साइड पे होने के बावजूद यहाँ के बच्चे बड़े टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो मेन मसला अभी हमने देखा है बिजली का भी है। तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के अलावा बिजली का बड़ा मसला है। तो ये क्या समझते हैं, क्या मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा, यहाँ पे बिजली क्यों नहीं लग रही? अभी तो यहाँ पे सड़क इतनी बेहतरीन आ चुकी है, जहाँ तक हम सड़क पे आए तो बहुत अच्छी सड़क थी पीछे, तो बिजली क्यों नहीं लगी? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी। हमारे यहाँ में जब मैं 2017 में यहाँ पे आया था, कच्चा रास्ता था। यकीन मानिए यहाँ पे जब स्कूल में पहुँचते थे तो डस्ट ही डस्ट होती थी। बड़ी मुश्किल से खुद को दोबारा रिपेयर करके फिर हम क्लास में जाया करते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये आ चुका है। और अब उम्मीद हम कर सकते हैं कि उमर अयूब साहब जो हमारे वज़ीर पानी और बिजली हैं वो इस बात पर खसूसी तवज्जो देंगे। जो ना आ सके उसकी वजह मेरे ख्याल में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का है। हमारे पास वापडा और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कभी पैसे होते तो मुतल्लिका कागजात पूरे नहीं होते, कभी कागजात पूरे हो जाते हैं तो फिर वो बजट नहीं होता था, इस वजह से नहीं हो सका। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे रोड का मसला हो चुका है, बिल्डिंग और हमारे बिजली का मसला ये भी अनकरीब हल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है उम्मीद कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर रोड बना दिया यहाँ पे तो बिजली भी आ जाएगी? जी, ये बेसिक ज़रूरियात में शामिल है जी। आजकल अगर किसी को बताया जाए हमारे पास बिजली नहीं तो लोग हैरान होते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपने स्कूल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सोलर से कुछ गुजारा करते हैं, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मौजूदा बजट में या इससे अगले बजट में हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ ये कर देगी। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं, यहाँ पे तकरीबन आपके पास हमारे ज़राए के मुताबिक 4-5 माह हो चुके हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट
جو ہے وہ بالکل خالی ہے, یہاں پہ پرنسپل نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی وہی تحریک انصاف کی حکومت ہے, تبدیلی کے دعوے کرتی ہے کہ یہاں پہ ہم ایجوکیشن میں بہتری لائیں گے, لیکن یہاں کے جب اسکول جو اتنے ماشاءاللہ اچھی مارکس لے رہی ہیں, یہاں کے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, تو یہاں پہ یہ بنیادی جو سہولیات ہے اس سے محروم کیا ہوا ہے؟ جی, وقتاً فوقتاً ہم حکومت کے نوٹس میں, محکمے کے نوٹس میں لاتے رہتے ہیں, لیکن جہاں اور بھی بہت سارے اسکول ہیں ہمارے جن کے پاس 6-6, 7-7 پوسٹیں خالی ہیں. ہمارے اپنے اسکول میں اب آپ کو پتہ ہے 10 پوسٹ خالی ہیں ٹیچرز کی اور ایس ایس صاحبان کی. اس کے علاوہ پرنسپل کی پوسٹ گزشتہ 6-7 مہینے سے خالی ہے. تو بہرحال فرق تو پڑتا ہے جی ادارے پہ. ادارے کا سربراہ ہونا بڑا ہی ضروری ہے. محکمے کو بھی توجہ دینی چاہیے. ہم ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب اور وزیر تعلیم صاحب سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہمارے ان مسائل کو حل کریں گے. ناظرین, پروگرام کو میں آگے بھی بڑھاؤں گا, اور یہاں پہ جو آپ نے اسکول کے اندر کے حالات بھی دیکھے, وہ بھی ہمارا کام تھا, ہمارا فرض بنتا تھا کہ آپ کو بتائیں اور اسکول کے اندر کے حالات بھی آپ کو بتائیں. ایک اچھا اسکول ہری پور میں, ایک اچھا اسکول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قسمتی سے یہاں پہ وہ بنیادی سہولیات سے ابھی تک محروم ہے. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے یہاں کے تحریک انصاف کی حکومت پہ. بہت اچھی بات ہے جس اسکول کے اندر بجلی نہیں ہے, یہاں پہ بلڈنگ مکمل نہیں ہے, لیکن وہاں کے بچوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو آپ کے گوش نشین کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل ضلع ہری پور کا میں بتاؤں تو 17 اسکول ہیں جو فنکشنل ہے ابھی تک. اس کے بعد تو رسا کشی میں تو وہ یہ ٹرافی لے کے آئے. اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اعجاز صاحب سے, تو کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں, یا یہاں کے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ خود ہی زیادہ محنت کرتے ہیں, کس وجہ سے یہاں پہ آپ کے بچے سپورٹس میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں؟ ایسا ہے جی کہ 2017 میں جب یہ اسکول فنکشنل ہوا تو 4 اساتذہ کے ساتھ یہاں پہ شروع ہوا. یہ 4 ایس ایس تھے تو جن کے ساتھ ہم یہاں پہ آغاز کیا. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بچوں میں صلاحیتیں بڑی ہیں, نہ صرف ایک تعلیمی لحاظ سے بلکہ فزیکلی بھی بچے بڑے سٹرانگ ہیں, کیونکہ حالات مشکل ہیں. بچے دور دور سے آتے ہیں, پہاڑوں سے آتے ہیں, تو ان میں فزیکلی وہ بڑی مضبوطی ہوتی ہے. تو پہلے سال ہی ہم نے جب کوشش کی 2018 میں ڈسٹرکٹ لیول پر سپورٹس ہوئے, تو پہلے خانپور زون میں ہمارے بچے جیت کے آئے ٹگ آف وار میں. اس کے بعد جناب ساجد صاحب ہمارے ہیں, سائنس ٹیچر ہیں, لیکن ان کو فزیکل سے بڑا شوق ہے, تو انہوں نے پی ٹی اے صاحب کے ساتھ مل کر ہمارے لیے یہ ڈسٹرکٹ میں رنر اپ رہے ہیں اس میں رسا کشی میں. اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس میں ہمارے بچوں نے حصہ لیا, اس میں بھی فرسٹ ٹائم ہی بچے ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بچوں نے کرکٹ میں حصہ لیا ہے. ہمارے بچے یہاں پر اگرچہ وسائل کی کمی ہے, گراؤنڈ بھی پوری طرح صحیح طرح فنکشنل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بچے بڑے شوق سے حصہ لیتے ہیں, اور یہ تمام کریڈٹ ان اساتذہ کو جاتا ہے. ہمارے اساتذہ نے دن رات ایک کر کے بچوں کے ساتھ, بچوں میں یہ موٹیویشن پیدا کر دی ہے کہ اگر ہم پڑھائی میں اگر تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں شہری بچوں کے مقابلے میں تو کوئی بات نہیں, ہم دوسرے میدانوں میں آگے نکلیں گے. تو ہمارے علاقے میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اگر حکومت کی بنیادی ضروریات پوری کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈسٹرکٹ ہری پور کے ٹاپ کے اسکولوں کے برابر ہوں گے. ناظرین, بڑی اچھی بات تھی جو مجھے پتہ چلی, اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کی گوش نشین بھی کریں. یہ جو سارے ٹرافیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ بچوں کی ہیں, یہ بچوں کی ان محنت کی وجہ سے, ان کی صلاحیت کی وجہ سے ان کو ملی, اور یہاں پہ انہوں نے سجا کے رکھی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, مزید ان کا گراؤنڈ بھی آپ کو بتائیں گے. گراؤنڈ کو جانے کا راستہ تو نہیں, لیکن گراؤنڈ کے اندر بچے کس طرح پہنچتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پہ اسکول کے بچوں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ شامل کروں, ان سے بھی جانوں کہ کیا کیا مسائل ان کے ساتھ ہیں, تو وہ بھی اپنی زبانی بتائیں. السلام علیکم بچوں, آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں اس وقت؟ وعلیکم السلام. ہم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جب کے طلباء ہیں, اور ہمارے اسکول کے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمارے اسکول کے مسائل کو حل کیا جائے. سب سے پہلے مسئلہ ہے راستے کا, اور راستے کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے. اس کے بعد بجلی کا مسئلہ ہے, بجلی کی مسئلہ بھی ٹھیک کیا جائے. اور سٹاف کی بھی کمی ہے, اور بلڈنگ بھی نامکمل ہے, اور بلڈنگ کو بھی جلدی سے مکمل کیا جائے. السلام علیکم. ہم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے طلباء, ہمارے چند مسائل ہیں. سب سے پہلے مسائل ہے راستے کا. ہمیں مختلف طرف سے اسکول کو راستہ چاہیے. بچوں کو اسکول میں آنے کے بہت تکلیف ہوتی ہے, اور کوئی مریض اگر کوئی مریض بیمار ہو جائے اسکول میں, اور اس کے لے کر جانے کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے. ہمیں پانی کی دقت ہوتی ہے, اور ہمیں بجلی کی بھی ہمارے اسکول میں بجلی نہیں ہے, جس کی وجہ سے گرمیوں میں بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اسکول میں راستے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اسکول کے طلباء آنے میں بہت دقت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے آپ سے یہ اپیل ہے کہ راستے کو مکمل کیا جائے. اسکول سے باہر نکلتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی مقامی جو لوگ ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائیں, اور ان سے بھی جانیں جو راستے کا مسئلہ ہے, جو راستے کا تنازع بنا ہوا ہے دو فریقوں کے درمیان, ان کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
क्या तनाज़ा है कि यहाँ पे अभी तक जो मसले हैं वो हल नहीं हो रहे, क्या मसला है इन लोगों का? सर ये रास्ते का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे इस रास्ते में जिनकी ज़मीन आती है, जो लोग बेचना चाहते थे उन लोगों से तो हमने ख़रीदी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं बेचना चाहते, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। और अभी हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ है, हमारे मरीज़ कोई हो अगर एमरजेंसी हो जाए तो हमें गाड़ी नहीं आ सकती है यहाँ पे हमारी आबादी में, और दूसरा जो है वो हमें चलने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ सामान लेके आना है उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको जब से रास्ता बंद हुआ है कोई मसला पेश आया, कोई मरीज वगैरह का? जी हाँ बिल्कुल, 3 दिन पहले शायद मेरे भाई को फूड पॉइजन हो गया था। रात को 3 बजे हमारी गाड़ी इधर नहीं थी आ सकती थी, इसके लिए फिर हमें उसको मेन रोड पे लेके जाना पड़ा, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रात को 3 बजे यहाँ से हमें उसको पैदल लेके गए हैं, फिर हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। इस तरह चारपाई पे उठा के चारपाई पे उठा के लेके गए हैं, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो चल भी सके। तो इस वजह से क्या मुतालबा है आपका यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट? जनाब हमारा तो हुकाम बाला से ये मुतालबा है कि ये हमें आबादी के लिए परमानेंट रास्ता दिया जाए। जो लोग नहीं दे रहे हैं, रास्ता बेच नहीं रहे हैं, उन्हें प्लीज़ उन्हें बोला जाए कि वो हमें रास्ता दे दें, तो हम अपना जो घर तक या हमारे महल्ले तक, हमारी आबादी तक जो जगह आती है, हम उसके लिए वो ख़रीदना भी चाहते हैं और रास्ता लेना चाहते हैं। हमें रास्ता हर हाल में चाहिए, ये हमारा बुनियादी हक है। ये नाजरीन इनके रास्ते की वजह से ये हम सारी मसाइल हैं। नाजरीन मैं आगे स्कूल में आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे एक स्कूल को बंद किया गया बच्चियों का, और यहाँ पे बच्चों के प्राइमरी स्कूल के अंदर, लड़कों के प्राइमरी स्कूल के अंदर इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक 150 बच्ची यहाँ पे पढ़ रही है। तो इसकी टोटल तादाद क्या होगी ये आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, तो उसमें लेके जाते हैं, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमेशा दावा किया है कि KPK के अंदर हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यहाँ पे तब्दीली लेके आए हैं और यहाँ पे एजुकेशन में बेहतर तब्दीली नज़र आई है। लेकिन आज मैं जिस स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, ये प्राइमरी स्कूल है बॉयज़ का, लेकिन यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो भी पढ़ रही हैं। उनका स्कूल बंद कर दिया गया तादाद की कमी की वजह से, लेकिन यहाँ पे बच्चियों के लिए यहाँ पे फीमेल टीचर नहीं, बच्चों के स्कूल के अंदर ये पढ़ रही हैं। आप तकरीबन देख रहे होंगे मेरे बैक साइड पे भी कितनी बच्चियों की तादाद है। जो हमने यहाँ पे मालूमात ली है, 125 बच्चियाँ यहाँ पे बच्चों के स्कूल के अंदर पढ़ रही हैं। यहाँ पे टीचर की भी तादाद कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्ची मौजूद है मेरे साथ। यहाँ पे कौन से स्कूल में, बच्चियों के स्कूल में आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? यहाँ पे नीचे आपने जो बच्चियों का स्कूल था वहाँ पे आपने एजुकेशन हासिल की है? सर नहीं। कौन सी ऐसी बच्ची है जो उसने वहाँ पे बच्चियों के स्कूल में एजुकेशन हासिल की हो, लेकिन उसके बाद वो बंद होने की वजह से यहाँ पे आ गई? कौन सी ऐसी बच्ची है? आप इधर आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? अरूज काजमी। अरूज काजमी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। बेटा आप पहले वहाँ पे बच्चियों के स्कूल में पढ़ती रही हो? जी। कितने साल पढ़ा है? कौन सी क्लास तक पढ़ा है आपने? प्रेप आपने वहाँ पे क्लियर की? जी। तो उसके बाद यहाँ पे आई हो बच्चों के स्कूल में, तो क्यों आई हो, क्या वजह है? उधर से स्कूल बंद हो गया था, फिर उधर गई थी, उधर से फिर मेरी अम्मी कहते हैं उधर इतनी पढ़ाई नहीं है, फिर इधर आ गई थी। अच्छा, वहाँ पे आप का स्कूल बंद हो गया, किस वजह से बंद हुआ है? टीचरें इतनी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, इधर 2 कमरे थे। अच्छा, 2 कमरे थे, टीचरें नहीं थी, और यहाँ पे अभी कुछ। अच्छा नाजरीन, ये थोड़ी सी छोटी बच्ची है, कंफ्यूज हो गई है। उसके बाद कौन सी ऐसी बच्ची है जिसने एजुकेशन यहाँ पे अपने प्राइमरी स्कूल गर्ल्स में हासिल किया हो? कोई ऐसी बच्ची और है? नाज़रीन सारी छोटी बच्चियां हैं, यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बैकवर्ड इलाका है यहाँ पे, तो इनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बात कर सके। लेकिन आप हमारे कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बच्चियां हैं, और ये सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद इन्होंने अपना स्कूल को फंक्शन नहीं कर सका। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ के स्कूल के अंदर भी जाऊँगा और कोशिश करूँगा टीचरों से भी उनका मौक़िफ़ हासिल करूँ। स्कूल के बाहर मैंने बच्चियों और बच्चों की मौक़िफ़ लिया, उस स्कूल के अंदर आ चुका हूँ। ये प्राइमरी स्कूल है जबकि बच्चों का है, बॉयज़ का है, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जॉब नंबर 1। तो यहाँ के टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं उनके पास कितनी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे बच्चियों की तादाद आपके पास कितनी है? तकरीबन 120 बच्चियाँ जो हैं ये ज़ेर तालीम है हमारे स्कूल में। तो बच्चों की कितनी तादाद है? बच्चे तकरीबन 160 के करीब हैं। 160 बच्चे हो गए, 120 आपके पास बच्चियाँ हैं। तो टीचर कितने हैं? टीचर 7 टीचर हैं। 7 टीचर हैं। तो कमरे कितने हैं? कमरे 7 हैं।
बच्चे और बच्चियों को आप साथ मिक्स बिठाते हैं यहाँ पे? हाँ, मिक्स बिठाते हैं। तो यहाँ पे बच्चियों का स्कूल भी है लेकिन वो बंद हुआ, किस वजह से बंद हुआ कुछ पता है? बंद होने की वजह ये है कि एक पहले तो लोकल जो टीचर थे वो सही तरीके से कोई मेहनत नहीं करते थे, जिसकी वजह से फिर लोगों ने क्या किया है, बच्चियों को हमारे स्कूल में दाखिल करा दिया है। उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया है। उनके सही मेहनत ना करने की वजह से हमारे स्कूल में बच्चियां जो हैं वो आ गई हैं। अच्छा, उस दौरान ही आपके पास बच्चियां आ गई जहाँ वहाँ पे स्कूल चल रहा था? मतलब वो जो स्कूल है वो तो बंद हो गया है ना, अभी वो बंद हो गया है, वो स्कूल नहीं चल रहा है। चूँकि बच्चियां जो है वहाँ जाने के लिए रजामंद भी नहीं है। वालिदैन ने 1-2 दफ़ा कोशिश की है कि हम बच्चियों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन बच्चियां जो है जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, बच्चियां वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि यहाँ पे जो मिस मैनेजमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, वो भी फीमेल की है कि अगर वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से टीचर यहाँ पे लाती तो वालिदैन कभी भी बच्चों के स्कूल में उनको लेके ना आती। ये बात यही है या और कोई है? यही बात है, बिल्कुल यही बात है। आपने डिस्टर्ब नहीं होते? आपके पास बच्चियां यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि आपके पास चूँकि हम लोकल टीचर हैं हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, चूँकि हमने काम करना है। ठीक है, को एजुकेशन सिस्टम चूँकि हर जगह मौजूद है। यहाँ तो मैं कहता हूँ 2 बच्चियों के प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन मतलब ये प्रॉपर तरीके से जो काम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से तादाद उन स्कूलों में कम है। अगर वो सही तरीके से काम करें तो मेरे ख्याल में बच्चियों की तादाद जो है वो बच्चों से भी ज़्यादा है इस वक्त। बच्चियों की तादाद बच्चों से ज़्यादा है। यहाँ पे हमने देखा है दूसरा आपके पास रास्ते का बड़ा मसला है, और पानी का क्या है? पानी का जो मसला है, ये कम्युनिटी का बोर है, हम वहाँ से पानी यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जो है वो पाइप जो हैं वो लोहे वाले पाइप हैं, वो बिल्कुल ज़ंग आलूद पानी है, वो जो पीने के लिए सही भी नहीं है। इसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से दरख्वास्त दी है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे SDO साहब आए हैं, उन्होंने कहा है जी आपका ये पानी का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपने लेबॉरेटरी वगैरह करवाई है कि पानी उसकी जो जहर आलूद? लेबॉरेटरी के बगैर ही हमें पता चल जाता है, चूँकि उसके जायके से पता चल जाता है कि ये पानी जायके का टेस्ट जो है। अच्छा, दूसरी बात नाजरीन मैं आपको बताऊं, जिस स्कूल के अंदर मैं खड़ा हूं जॉब नंबर 1, यहाँ पे इस टाइम भी क्लास 4 नहीं है। क्लास 4 का ना होना कितनी मुश्किलात का सामना यहाँ की टीचरों को करना पड़ता है। तो ये यहाँ के एक और टीचर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान। स्कूल में इतना बड़ा स्कूल है, इसके कमरे देखें, सफाई का मसला है हमारे इधर। उसके बाद चाय हमें खुद बनानी पड़ती है। उसके बाद क्लास 4 का एक अहम रोल होता है ना, किसी भी इदारे में क्लास 4 का एक अहम रोल होता है। तो वो सारी ड्यूटियाँ हमारे ये सफ्तर साहब हैं, हालांकि ये बीमार भी हैं, इनकी टांग भी टूटी हुई है, लेकिन इन्होंने खुद उठाई हुई है, हमारे पे भी नहीं डालते। सुबह सवेरे आ जाते हैं तकरीबन 6:30 बजे। तो होना चाहिए क्लास 4, अल्लाह करे कोई नौकल बंदा हो ताकि हमें भी फ़ायदा हो कुछ ना कुछ, और हमारा अदारा भी इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त अदारा है हमारा। वो लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, कोई छुपी लुकी बात नहीं है। तो अल्लाह पाक आसानी पैदा करे। अच्छा, यहाँ पे क्लास 4 के बगैर आप स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो रास्ते का मसला है, हमने देखा है रास्ता अभी बंद है, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? यहाँ पे खुद अपनी जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह लेके आते हैं? सर ये एक छोटा सा आपने भी देखा है, वो डंगा सा, हम तो बना बोलते हैं ना अपनी ज़ुबान में, उससे गुजर के आते हैं। हमारे इधर कुछ टीचर डिसेबल भी है ना, हम तो चलो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद हैं, आ जाते हैं कहीं ना कहीं से गुजर के, लेकिन वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। डिसेबल टीचर हैं, कितनी दफ़ा सर वो गिरे हैं इधर से आते हुए। तो अल्लाह करे ये रास्ते वाला काम भी हो जाए। तो इंतज़ामिया तो जो है ना बिल्कुल सही है। हम लोगों ने AC साहब को भी 2-3 दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है। उसके बाद DC साहब को पता चला है, हाल ही इंटरव्यू करते हैं उधर बैठ के, इधर आने को किसी का दिल नहीं करता। अच्छा, इंतज़ामिया वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू करने के लिए बैठी हुई है? यहाँ पे जो है आके कभी डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पे आया है कि देखा है आपके साथ जो मसाइल का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, वालिदैन को करना पड़ रहा है, बच्चों को करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो रिहायशी है उनको करना पड़ता है? ना कोई भी नहीं। हमारे पास आदिल अयूब साहब जो पहले AC से असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर, वो पहले हमारे पास कभी कभार आ जाते थे। जो सारा तवाब साहब हैं खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर, उनको हमारे सारे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है। मैंने खुद भी 1-2 दफ़ा उनके साथ बात की है, लेकिन कोई भी नहीं। वो कहते हैं एडिशनल AC साहब आएंगे। हम लोग इंतज़ार कर करके थक चुके हैं, कोई भी नहीं आ रहा। हमारे रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है सर, इंतज़ार कर के थक चुके हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलियात देने को तैयार नहीं इंतज़ामिया, तो सिर्फ नाम की है। और दूसरी बात तहरीक इंसाफ की, फिर मैं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के अगर हमें दावे कर देखता हूँ तो बहुत बड़े बड़े दावे नज़र आते हैं। फीमेल मुकाबला करती हैं मेल से हर शोबे में, अपना स्कूल तो चला नहीं सकी फीमेल। तो यहाँ पे एक और टीचर भी हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे फीमेल का स्कूल बना हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन उनकी है, बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे फाल भी था, लेकिन उसके बावजूद वो
स्कूल फंक्शनल नहीं है तो ये बच्चियां आपके स्कूल में आ रही हैं? जी इस तरह के पहले चूँकि सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि उसमें 2 टीचर्स थीं और आस्ता आस्ता उन्होंने काम ठीक नहीं किया तो लोगों का एतमाद आस्ता आस्ता उठना शुरू हो गया ना। तो चूँकि हमारे पास जो नए लोग आ रहे थे NTS के थ्रू, उनकी वजह से मतलब तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा ऊपर गई ना, तो उसका थोड़ा सा हमें नुकसान ये हुआ इलाके को कि जो बच्चियों का स्कूल था वो बंद हो गया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि फ़ीमेल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इतनी सही नहीं थी जिसकी वजह से वो स्कूल बंद हो गया है। तो हमारी ये ख्वाहिश है होना चाहिए बच्चियों का एक अलग स्कूल होना चाहिए। अभी ये DO फीमेल को चाहिए कि NTS के थ्रू जो नई आ रही हैं टीचर्स फीमेल आ रही हैं उनकी यहाँ पर तैनाती उनको करें और होना चाहिए। ये जो हमारे पास भी फ़ीमेल हैं इनके वालिदैन को एतमाद में लेकर वहाँ पर जाना चाहिए। अगर हो तो हमें तो इसमें खुशी होगी कि लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल हो ताकि ये जो थोड़े बहुत मसाइल हैं ये हल हो सकें। अच्छा नाजरीन, मैं आपको ये बात बताऊं, यहाँ पे हमने थोड़ी सी देखा, ये सारी जो नाइली थी STO की थी, तो STO की नाइली की वजह से खानपुर में जो तैनात थी उनकी वजह से यहाँ पे एक अच्छे टीचर नहीं थी, न टीचर होने की वजह से एजुकेशन बेहतर न दी, तो बेहतर एजुकेशन ना होने की वजह से बाज़ तो बच्चियों के वालिदैन ने अपने बच्चियों को प्राइवेट सेक्टर में लेके गई और बाज़ ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने यहाँ के बच्चों के स्कूल में उसको दाखिल करवा दिया। और यहाँ पे STO के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी यहाँ पे DO फीमेल को, लेकिन वो भी कुछ खातर ख्वाह नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ पे इस वक्त काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मैं आगे भी प्रोग्राम को बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा अपने प्रोग्राम में शामिल करूं DO फीमेल को और उनसे भी जानूं, उनके भी मास्क इसमें शामिल करूं। और जो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं, इससे पहले तो हमें तो नहीं पता था कि इतने ज़्यादा मसाइल का सामना यहाँ के इलाके के लोगों को करना पड़ रहा है जो हमें सामने आए। लेकिन अभी मैं BHU का विजिट करूंगा और वहाँ पर भी आपको बताऊँगा कि यहाँ पर एक पैनाडाल के टैबलेट तक नहीं मिलती। आखिर क्यों? तहरीक इंसाफ सिर्फ दावे कर रहे हैं। पे खड़ा हूँ तो आपको मैं बताना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि मैं खुद जब यहाँ पे आया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी कंफ्यूज हो। ये रास्ता है जो पक्का रास्ता है, यहाँ तक आ रहा है, इससे आगे 2 रास्ते जा रहे हैं, कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है और एक ये स्कूल की तरफ जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा शाह साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये असल हकीकत क्या है, रास्ता क्यों बंद हुआ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का रास्ता है, तो कौन सी ऐसी परेशानी है या कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रास्ता बंद हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बात है कि ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये मेरी मालकियत है, ये कागजी रास्ता नहीं है। इनको 10-12 साल पहले इसी रास्ते से मैंने इन लोगों को 2 मरले डिस्ट्रिक्ट नाम पे किया है। इनको मैंने बोला है कि ये बाकी जो है मेरे बहन भाइयों से आप डिस्ट्रिक्ट नाम पे ये रास्ता जो है ना करा लो। तो आगे जो रास्ते का मसला जो बना हुआ है, वो रास्ता जो है मैंने इस रास्ते को सीधा आगे तक दे दिया है। आगे जिस आदमी की जगह बनती है वो आदमी रास्ता नहीं दे रहा, वो अगर रास्ता दे दे तो आगे फिर मेरी आती है। मैंने वो तकरीबन 12 फुट चौड़ी और तकरीबन 40 फुट लंबी, वहाँ भी मैंने वो लकीर लगा दी है कि भाई ये अवाम का रास्ता है, स्कूल का रास्ता है। अब बीच में जो आदमी है वो नहीं दे रहा, उसकी 1 कनाल जगह बनती है, वो देगा तो मेरी जगह पे पहुंचेगा, मैं वहां से आगे रास्ता दूंगा तो फिर इसी आदमी का आगे गेट आता है। ये गेट में दाखिल तब होगा कि ये अपनी जगह देगा पहले रास्ता, फिर मेरी जगह से रास्ता जाएगा तो फिर इसके गेट, इसको फ़ायदा है सबसे ज़्यादा। मेरा ना आगे घर है ना मेरी ज़मीन है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मुझे सिर्फ ये फायदा है, आवाम को फायदा है। जो ये ज़मीन आपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पे दी उसकी आपने बाकायदा तो पेमेंट ली होगी, तो कितनी जगह दी थी आपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पे डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ के आवाम को? 10 मरले मैंने दिए इनको। मैंने उस वक्त बोला था कि ये आप मुख्तलिफ नंबरों से न लें, आप जहाँ से रास्ता जाता है उस जगह से आप वो जगह लें। अच्छा, 10 मरले कितने नंबरों में गए आप? 4 नंबरों में। 4 नंबरों में 10 नंबर मतलब 10 मरले दिए, तो कौन सी सन में दिए थे? ये तकरीबन 2009 में। 2009 में 10 मरले दिए। और ये मैन जो है अभी भी हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल जो बच्चों का और उसके साथ रिलेटेड यहाँ के जो आबादी है तो उसके लिए तो अभी भी प्रॉब्लम ही है, तो इसका हल भी बताएं थोड़ा सा, हल क्या होगा? हल इसका मैंने खुद सबसे पहले मैंने इन लोगों के लिए और स्कूल के लिए रास्ता जो है ना ये मैंने कुर्बान दी। ये अगर मेरी तस्वीर मेरे गांव वाले, मेरे महल्ले वाले ये अगर सुन रहे हैं तो भाई आ जाओ मेरे पास। मैं जो बात अगर झूठ बोलूं
बुलाओ, डीसी को बुलाओ, एसी को बुलाओ, गरदौर जिसको बुलाना है बुलाओ, सच होगा। ये रास्ता मैंने दिया है, मेरी ख्वाहिश, मेरी कोशिश थी तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम सब मुनाफिक हो। तुम्हारे दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। तुम मेरे घर में बैठकर, तुम महल्ले वालों ने आकर नहीं बोला है कि हम बस आप दस्तबरदार होते हैं इस रास्ते से, आप इस रास्ते को तोड़ दें, ये जो आर्जी रास्ता है इसको भी ख़त्म करें। ये महल्ले वाले हमारा साथ नहीं देते। इसमें मास्टर नज़ीर, मास्टर महबूब और मलक अकबर, ये 3 आदमी मेरे पास हैं, और ये तीनों आदमी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये इस रास्ते के सरकर्दा हैं। इस रास्ते को बनाने में इन्होंने पैसे भी लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। इन्हीं लोगों ने आकर मुझे बोला है कि भाई शाह साहब इस रास्ते को तोड़ दो, ये महल्ले वाले कोई भी हमारा साथ नहीं देता है, बस हम नहीं लेते किसी से, बस इसको ख़त्म कर दो। मैंने बोला इस आदमी ने, जिस आदमी रुकावट जिसने डाली है, इसको आपने मेरे से पैमाइश करके इसकी ज़मीन जो मेरे कब्ज़े में थी वो आपने दुआ दी है। मैंने शर्त पे छोड़ी है उसकी ज़मीन कि ये रास्ता छोड़ेगा तो मैं इसका ज़मीन भी छोड़ दूंगा, क्योंकि उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, उसकी मैंने किया है कब्ज़ा। तो मैंने बोला रास्ता छोड़ो तो मैं इसकी ज़मीन से मैंने फिर हाथ उठा ली, मैंने शावर मंगवा कर उसकी जगह पे जो मेरे दरख्त थे मैंने उनको काट के उसके वाले किए, जगह वाले कर। मैंने बोला रास्ता अगर ना निकला तो फिर ये जगह इस तरह होगी जिस तरह पहले थी। उसने रास्ता नहीं दिया, मैंने बोला है कि नहीं होगा, रास्ता दोगे तो ठीक है, रास्ता नहीं दोगे तो कोई हमारा वो हिसाब किताब जो है ना ख़त्म। तुमने मेरी जगह पे कब्ज़ा किया है, मैंने तुम्हारी जगह पे कब्ज़ा किया है। फिर इन लोगों को बेहतरीन हाल भी मैंने, ये बोलते हैं ना कि शाह साहब पैसे, भाई मेरी जगह ही नहीं है, पैसे मैं किस चीज़ के लूँ? मैंने मेरी उस जगह से आगे जो जगह है उसको 2 मरले मैंने दे दिए, वो मैंने अलहदा कर दिए, सब कुछ रास्ता जो है मेरी तरफ से क्लियर है। ये इस आदमी का रुकावट इसने डाली है, इसकी 1 कनाल जगह है, इसके मुतबादल इनको मैंने ये बोला है कि मेरी जगह है इसके घर में, इधर थोड़ा सा दूर है। मैंने बोला महकमा माल यहाँ पे आए हैं, गिरदौर आया है खानपुर का, तो उन्होंने पैमाइश की तो उन्होंने रास्ता निकाला है, या उन्होंने वो भी सिर्फ खानापुरी करके फोटो सेशन करके चले गए? वो बोलते हैं कि रास्ता शाह साहब ये आपकी मलकियत है, जहाँ तक आपका जाता है वहाँ से आगे आपकी जगह है। ये तो हमारा उधर घर होता था, उस घर के घर तक रास्ता है। दरमियान में कितनी गैप है जो आपका जगह नहीं है? तकरीबन 2 से 3 मरले। अच्छा, 2-3 मरले आपकी जगह नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है जो बच्चों की। वो आदमी 3 मरले 4 मरले अगर जगह दे देना, सीधा रास्ता, सामने वाला रोड और इधर वाला रोड ये सामने अटैच हो जाता है। इनको मैंने ये बोला है कि इसके मुतबादल जो इसकी जगह बचती है वो उसकी जगह बचती है तकरीबन 10 से 12 मरले। वो बोलते हैं उसको भी मैंने हाल निकाला है कि जो मेरी जगह इधर बचती है इसकी साइड पे वो ये रख ले, और इधर जो बचती है ये मैं रख लेता हूँ। मैंने तो इनको मुतबादल भी इनको किया है। इनको सिर्फ महल्ले वालों को मैंने ये बोला है कि आप इस तरह करें कि मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ आप लोगों की खातिर, आप ये जो जगह बचेगी इस पे जो खर्चा आएगा वो आप महल्ले वाले अदा करें। बड़ा अच्छा सजेशन है नाजरीन, इंशाल्लाह हम आज यहाँ पे आए और पूरी उम्मीद करते हैं कि मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और महकमा एजुकेशन को भी चाहिए कि इस पे करे, और ख़ास तौर पे यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है कि इस पर खून खराबा हो, फसादात हों, लेकिन इससे पहले उनको हल करना। गुजर रहे हैं, सिर्फ मसला इधर गाड़ियों का है। इनको तकलीफ, महल्ले वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है ना गाड़ियों की है कि उनके घर पे गाड़ी नहीं जा सकती। उनका मसला पैदल ये चाह रहे हैं, पैदल मैं भी किसी बच्चे को नहीं रोकूंगा, किसी महल्ले वाले को किसी को नहीं रोकूंगा, पैदल जाएं। मसला तो इनका गाड़ियों का है, गाड़ियां जो है इनकी खड़ी हो गई हैं। ये इस आदमी के साथ कमिटमेंट करें, या तो इसको मुतबादल जगह दें, 1 कनाल जगह है, या पैसे दें। अगर नहीं मसला बन सकता तो फिर मेरे पास आ जाएं। मैं इस कौम के लिए, इस महल्ले के लिए, इस इलाके के लिए मैं कुर्बानी दूंगा। मैं उसको मुतबादल जगह, उसके घर के नीचे है मेरी जगह, मैं उसको दे दूंगा, लेकिन मुझे पेमेंट कौन करेगा? कौन मुझे उसकी कितनी पेमेंट होनी चाहिए आप हमें बताएं, ताकि गवर्नमेंट आपको पेमेंट कर दे। अगर क्योंकि गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे मुतबादल आपको जगह प्रोवाइड करना, वो लेके जाना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल बना दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन रास्ता नहीं था, तो फिर वो करोड़ों रुपए तो क्यों लगाए, आखिर किसने लगाए? इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं कि अगर आप उसके घर के पास उसको देंगे तो आपको क्या पेमेंट होनी चाहिए? पेमेंट तो ये है कि यहाँ पे जो इंतकाल बने हैं ना, अभी 1 साल या 2 साल या 3 साल पहले, वही रेट होगा।
इसमें 20 लाख का भी कनाल बना है रेट। और वो सबसे जो बड़ी चीज़ है, मुझे वो जगह दे दें, जितनी जगह बनती है, मैं ज़रूरी नहीं पैसे ही हूँ, मुझे उसके मुतबादल जगह दे दें। ये महल्ले वाले अच्छा जगह दे दे, नहीं जगह देते तो पेमेंट कर दें 1 लाख रुपए मरले के साथ। मकसद है कि वो फ्रीक भी जो है वो खुश है, वो तो बोलता है कि ये शाह साहब जो हैं इनके पास हाल है कि मेरे वो सामने जो घर हैं उनके नीचे इनकी जगह है, वो उसकी भी ख्वाहिश है। अब मैं किस लिए इतनी बड़ी, मेरी जो रास्ते में जो जगह आती है इसकी तो कुर्बानी मैं दे सकता हूँ, लेकिन जो रास्ते से 50 गज दूर जगह है वो मुझसे लेकर आप इसको देंगे तो फिर भाई मुझे भी तो कुछ या गवर्नमेंट अदा करे, मैं भी गरीब आदमी हूँ, या फिर महल्ले वाले करें। मैं इसको वो जगह दे देता हूँ, 10 मरले बनती है, 20 मरले बनती है, वो लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी है, वो चाहता भी यही है। अच्छा नाजरीन, हमने निशानदेही भी जो असल चीज़ थी और उसका हल भी अपने प्रोग्राम में बता दिया, गवर्नमेंट को भी बता दिया और आवाम को भी बता दिया। अब फैसला जो है यहाँ की इंतज़ामिया ने करना है और यहाँ की आवाम ने करना है। नाजरीन, प्रोग्राम को मैंने कहा है आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे अभी हो चुके हैं 2:50, लेकिन यहाँ पे BHU को ताले लग चुके हैं। यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ताला लगा हुआ है और ये BHU का बोर्ड है। और ऊपर भी देख सकते हैं कि BHU के बाहरी हम खड़े हैं और जो है BHU, ये जब की BHU है, जैसा कि आप हमारे टाइम पे भी देख सकते हैं, दिन का टाइम है 2:50 है, लेकिन यहाँ पे अभी BHU को ताले लगे हुए हैं। अगर कोई मसला हो जाता है यहाँ पे आवाम के लिए तो बड़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है और यहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो नहीं हो रही और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ की आवाम का ये भी मुतालबा है कि यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है ख़ास तौर पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वो 24 आवर होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को जो मसाइल हैं और उनमें कोई कमी आ सके। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा और उसके जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे स्कूल के रास्ता, आवाम के लिए रास्ते के लिए, तो उसका हल भी यहाँ पे हमने आपको ढूंढ के दिया। दोनों पार्टीज़ के पास गए, उनके मौक़िफ़ लिए, प्रोग्राम में शामिल किए, रास्ते जो बंद है अभी बच्चों के लिए ख़ास तौर पे और टीचर साहिबान के लिए उसका भी बताया। नाज़रीन, उसके बाद जो स्कूल नंबर 1 स्कूल आने वाली है एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, उसके लिए बड़े मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है। क्या मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है? वहाँ पर बिजली तक मौजूद नहीं। नाज़रीन, बिजली ना होना वहाँ की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। उसके साथ प्राइमरी स्कूल, बच्चियों का प्राइमरी स्कूल बंद है। बच्चों का के स्कूल में बच्चियां 120 की तादाद में इस टाइम पढ़ रही हैं और वहाँ पे SDO की नाइली की वजह से यहाँ स्कूल बंद हुआ। यहाँ पे से वहाँ की वालदैन ने, बच्चियों के वालदैन ने अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर और बच्चों के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक करे दरामद हो और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पे कोई एक्शन ले और इसकी इंक्वायरी करे ताकि इन लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सड़क बन चुकी है यहाँ पे पहाड़ी इलाके में। इस पे ज़रूर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि जिन्होंने ये मनसूबे बरामद यहाँ पे किया और ये बहुत खूबसूरत सड़क यहाँ पे बन चुकी है, ये आगे तक जाती है। तो क्या ही बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अमान को दें इजाज़त। अल्लाह ने